So, good evening, everybody. I welcome you all to our new series going to start for our new batch on NDA and CDS. So, lately, we from Abhigan Academy side not been posting on YouTube as well as Instagram because the NDA exam and CDS exam was going on. Just a couple of days back, the results were declared, and we are very happy to announce that most of our students have qualified the written part and now they are preparing for their SSBs. So, keeping all those things in mind, we have decided to launch a new crash course that is going to target 14th April CDS and NDA. 14th April NDA and CDS, that's for 2023. So it would be a 3 to 4 months crash course where we will be focusing on general studies, maths and English, which in turn help you to clear this exam easily. We are the only institute in Northeast that focuses exclusively on NDA, CDS and CAPF. So with this video, we are going to show you what is the syllabus and what's our approach going to be when you start your crash course with us. So without getting delayed, let's get started. So the first question, from students we hear is about, sir, how do we cover current affairs? So for current affairs, we have designed or we have categorized the topic into different parts. So the first part is from where you get questions are ministries and schemes. So they can ask you this scheme is related to which ministry, or this ministry have launched which of these schemes. Or many times there is a question on events and dates. So suppose this ministry has launched a particular kind of event, and on this day, what is that day? They can ask you. Or suppose they have launched an event and what is the theme of the event. So these are the hot topics for UPSC, for NDA as well as CDS. And when you go through these topics, you just have to remember the one-liners when you remember the schemes. You don't have to go into the detail that, okay, say for example, PM Jan Arogya Mission, what is the amount allocated for primary healthcare or what is the amount allocated for secondary healthcare. ये हम लोग को नहीं करना है. हम लोग को बस one-liners पढ़ना है कि मोटा मोटी schemes क्या है, कब लॉन्च करी गई थी और इसकी थीम क्या है. इसी के इर्द गिर्द आपको क्वेश्चन आएगा और कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च करी है. नेक्स्ट एक क्वेश्चन और एक आता है करंट अफेयर से, दैट इज ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज या national and international current affairs that is going on. So any recent COP meeting, any recent World Bank meeting where they have launched a particular scheme or initiative, any particular IMF meeting, FATF, Financial Action Task Force, that is in news, United Nations news, all those things become important. Russia-Ukraine war is going on. So, they can ask you specific regions, okay, which these places belong to which part. They'll give you 4 options and you have to answer that. So that is the reason why news of national and international affairs become important. Next is your appointments. So usually many a time the question is asked that appointments are only related to your banking exam, but ऐसा कुछ नहीं है. आपके जो appointments हैं वो दोनों जगह ही पूछे जाते हैं, CDS, NDA as well as बैंकिंग में. बैंकिंग में थोड़ा स्पेसिफिक पूछा जाएगा. CDS, NDA में जो UPSC कराता है वो थोड़ा सा ब्रॉड टर्म्स में पूछा जाएगा कि कैग का मतलब कैग में कैग का हेड कौन है, या फिर अभी रिसेंटली नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के हेड किसको बनाया गया, तो उस हिसाब से पूछा जाता है. अगला जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है करंट अफेयर्स के लिए, दैट इज अगेन स्पोर्ट्स. यहाँ पे इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज, अवार्ड्स, जैसे रिसेंटली हमारे कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे तो प्लेसेस कहाँ होने वाले हैं, या जो मैस्कॉट होता है गेम्स का उनके बारे में पूछ सकते हैं. अर्जुन अवार्ड्स, द्रोणाचार्य अवार्ड्स किसको मिला गया. सो आपको सारे अवार्ड्स याद नहीं करने, जस्ट गिने चुने 2-3 जो इंपॉर्टेंट है, जो रेगुलरली न्यूज में चलते आ रहे हैं, जिसके अगेंस्ट कुछ कंट्रोवर्सी होगी, समवॉट ऑन दैट लाइंस. नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ओनली द वन दैट इज इन न्यूज. आज के दिन में आपको ऑल ओवर इंडिया में 100 से भी ज्यादा नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है. तो इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल टू मेमोराइज ऑल ऑफ देम. सो जस्ट द इंपॉर्टेंट वन, जहाँ पे सपोज चीता रिलोकेट किया गया था अभी थोड़े दिन पहले, कहाँ से लेकर आए थे, कौन से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में रिलोकेट किया, वो सब चीजें जानने की जरूरत है. डिफेंस न्यूज में क्या है कि अभी रिसेंटली कोई मिसाइल या कोई वेपन लॉन्च किया हो. सेकेंड इंपॉर्टेंट है आपकी रैंक्स इन आर्मीज कैसे होती हैं, कि मतलब आपका ब्रिगेडियर, कर्नल, मेजर, वो उस रैंक की हायरार्कीज याद रखनी है, रैंक की क्रोनोलॉजी याद रखनी है. एंड थर्ड इज मिलिट्री एक्सरसाइज, जैसे कि अभी रशिया के साथ हमने कुछ मिलिट्री एक्सरसाइज करी थी, या जापान के साथ हम लोग ने वरुणा एक्सरसाइज करी थी, या आपका फ्रांस के साथ हम लोग ने कुछ एक्सरसाइज करी है. तो वो सारी चीज़ें आपको जाननी चाहिए. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपकी करंट अफेयर्स में और एक है, दैट इज़ योर इकोनॉमिक्स.
इकोनॉमिक्स में आपको बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चंस आएंगे। यहाँ पे आपको इतना कुछ घुमा फिरा के नहीं पूछेगा, बोथ एनडीए एंड सीडीएस में। इकोनॉमिक्स में क्या है, द बेस्ट थिंग इज इफ यू नो द कॉन्सेप्ट यू कैन आंसर दैट। सो बेसिकली पूछा जा सकता है एसएलआर क्या है, स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो, या सीआरआर क्या है, डिमांड सप्लाई से कुछ रिलेटेड पूछ सकता है, इन्फ्लेशन से पूछ सकता है कि अगर हम लोग ने मॉनेटरी पॉलिसी यूज़ करके हम लोग इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, वो 2-3 ऑप्शन दे सकता है। बजट इंपॉर्टेंट हो जाता है और इकोनॉमिक सर्वे इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाते हैं कि ये स्कीम लॉन्च करी गई थी या इतना एलोकेशन किया गया था इस पर्टिकुलर स्कीम में, तो वो स्कीम किससे रिलेटेड है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको हमेशा देखने मिल जाते हैं एनडीए एंड सीडीएस दोनों में। तो ये मैं बोलूँगा कि आप थोड़ा इन दोनों क्वेश्चन को थोड़ा सा आप अच्छे से बना के चलिए। उसके बाद हम लोग आगे आते हैं, जो हम लोग ने नेक्स्ट देखा है आपका ज्योग्राफी के बारे में। तो ज्योग्राफी में अगेन आपकी 11th-12th की एनसीईआरटी वुड बी इनफ। इसको भी हम लोग होलिस्टिकली कवर कराएंगे, इसके हमने नोट्स बना रखे हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जैसे कि रिवर सिस्टम हो गया, रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हो गया, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स हो गया, टाइप्स ऑफ रॉक्स हो गए, ये सारी आपकी बहुत बेसिक चीजें जो आपके एनसीईआरटीज में कवर करी गई हैं। इसको हम लोग आने वाले अपने लेक्चर्स में कवर करवाएंगे। इसके हम लोग ने ऑलरेडी पीडीएफ्स बना दिए हैं एनसीईआरटी से और अलग अलग मल्टीपल सोर्सेज से, ताकि आपको सब कुछ एक साथ नहीं पढ़ना पड़े, आपके लिए इजीली अवेलेबल। 5th इज अगेन योर हिस्ट्री, जहाँ पे आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, एंशिएंट मॉडर्न मेडिवल। इसके लिए भी हम लोग ने नोट्स बना रखे हैं, हम लोग ने प्रीवियस ईयर पेपर्स के थ्रू इसके नोट्स क्रिएट करे हैं, देखते हुए कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बेसिकली आपसे पूछा जाएगा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब लॉन्च हुआ, या द अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया ये किताब किसने लिखी, या फिर आपसे पूछा जा सकता है ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी किससे रिलेटेड है। ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चीजें अगर पूछी जाएगी तो पूछी जाएगी। सो यू कैन इजीली आंसर दिस क्वेश्चन एंड देन गेट अ गुड मार्क्स इन योर पेपर। उसके बाद पॉलिटी हो गया। पॉलिटी का तो मैंने आप लोगों को नीचे टाइम टेबल ही दे रखा है कि हम लोग पॉलिटी को आपकी 25 से 26 दिन में कवर करा लेंगे, जहां हम लोग मल्टीपल चैप्टर्स जैसे कि प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट्स, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, फेडरल सिस्टम, आपका पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, फिर आपका यूपीएससी, कैग, ये सब बॉडीज के बारे में हम लोग बात करके इसको अराउंड 24 डेज में कंप्लीट कर लेंगे। लास्ट के 2-3 दिन हम लोग अपना प्रीवियस ईयर पेपर्स देखेंगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बेसिकली आपको बायो, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री पढ़नी पड़ती है, जिसमें आपको बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे मिरर के ऊपर पूछ सकता है, या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लांट सेल्स, एनिमल सेल्स के ऊपर पूछ सकता है, या आपको किसी केमिस्ट्री का कोई सॉल्यूशन, कोई फार्मूला दे देगा, उसको टेढ़ा करके पूछ सकता है। फिजिकल केमिकल चेंजेस क्या हो सकता है। तो बहुत ही सिंपल सरफेस लेवल की नॉलेज पूछते हैं साइंस में, उसके लिए भी आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज योर PYQ क्वेश्चंस ऑफ लास्ट 10 इयर्स। तो अगर हम लोग एनडीए की प्रिपरेशन करा रहे हैं, सीडीएस की करा रहे हैं या सीएपीएफ की करा रहे हैं, हम लोग इन तीनों के लास्ट 10 इयर्स के पेपर, वही पेपर हम लोग एनडीए वाले स्टूडेंट को कराएंगे, जिसमें हम लोग ज्यादातर प्रेफरेंस उसको लास्ट 10 इयर्स के एनडीए पेपर की देंगे। हम लोग सेम सीडीएस स्टूडेंट वाले को कराएंगे, जिसमें हम लोग ज्यादा प्रेफरेंस सीडीएस के पेपर्स को देंगे, बट साथ के साथ हम लोग एनडीए एंड सीएपीएफ के भी पेपर कराएंगे। एंड सेम गोज फॉर द सीएपीएफ एग्जाम। तो आपको उसमें कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं आने वाली है। आपको एक आइडिया लग जाएगी कैसे एलिमिनेशन करना है, क्या आपको यूज करना है ट्रिक्स, ताकि आप आइडेंटिफाई कर पाओ। अब हमारी एक बेसिक अप्रोच क्या होने वाली है, मैं आपको वो फटाफट बता देता हूं अभिज्ञान एकेडमी में। तो पहला क्या रहेगा, हम लोग स्टार्ट करेंगे फर्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, ताकि हम लोगों को क्या होगा, हम लोग को पैटर्न समझ में आ जाएगी किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इन दोनों एग्जाम्स में। अगर आपको अपने एनिमी की स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस के बारे में नहीं पता चलेगा तो आप उसको कैसे हराओगे। सेम गोज फॉर PYQ। अगर यूपीएससी हमारे को कुछ बोलता तो नहीं है कि आपको ये किताब पढ़ के आनी है या आपको यहाँ से पढ़ के आना है, वो तो हमें बस सिलेबस एक दे देता है और बोलता है कि ये चीजें प्रिपेयर कर लो। अगर आप टैलेंटेड हो तो आप बिना पढ़े भी आ जाओ, अगर आप इतने आंसर आते तो हम लोग आपको ले लेंगे। तो जो बेसिक तरीका होता है यूपीएससी को समझने का, यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराए गए एग्जाम्स को समझने का, तो इज योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने ज्यादा करते रहोगे, उतना आपको चीजों के बारे में क्लैरिटी मिलती रहेगी और उतना चीजों को आप अनइंपॉर्टेंट चीजों को आप स्किप करते रहोगे। उसके बाद हम लोग इसमें ऑफिशियल आंसर्स की इसके साथ ही चेक करेंगे, हम लोग इधर उधर नहीं भटकेंगे। सेकेंड है, हम लोग फिर जब हम लोग ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिए, हम लोग टॉपिक वाइज सिलेबस को उठाएंगे और उनको कवर करना स्टार्ट करेंगे इंडिविजुअली। इसके लिए आपको हैंडमेड पीडीएफ दिए जाएंगे, एडिटोरियल नोट्स अगर होते हैं तो अगर कोई एडिटर ने अच्छा नोट लिखा है वो आपको बताया जाएगा, एंड साथ ही एनसीईआरटी एंड अदर रेफरेंस बुक को यूज किया जाएगा आपके इन नोट्स को देने के लिए। थर्ड है, अगर आपने सब, आपको नॉलेज मिल गई, सब कुछ समझ में आ गया, अब आपको क्या कराया जाएगा, आपके साथ मॉक टेस्ट कराए जाएंगे, जहां पे सेक्शनल मॉक टेस्ट भी होंगे एंड कंप्लीट मॉक टेस्ट भी होंगे। सेक्शनल जैसे कि आज सपोज आपने फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ा, तो एक कंप्लीट मॉक टेस्ट होगा फंडामेंटल राइट के ऊपर, या आपने सपोज हिस्ट्री का, मॉडर्न हिस्ट्री के आपने कुछ 4-5 नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से लेके आपने क्विट इंडिया मूवमेंट तक पढ़ा, तो वहां से रिलेटेड आपको क्वेश्चन डायरेक्टली सेक्शनल में पूछे जाएंगे। और कंप्लीट में आपका मिक्स बैक क्वेश्चन होगा, जिसमें आपका पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस सब कुछ मिक्स रहेगा, और ये आपका रिवीजन करने के लिए हेल्प करेगा। फोर्थ, हम लोग का क्या अप्रोच रहेगी, डाउट क्लियरिंग एंड पर्सनल 1-on-1 मेंटरशिप। यहाँ हम लोग क्या करते हैं, इंडिविजुअल लेवल पे सबको सिखाते हैं कि इस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं, इस टाइप से आपको सॉल्व करना है, और 1-on-1 मेंटरशिप दी जाती है। और इसके लिए आपको ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स भी अवेलेबल रहेंगे आपके यूट्यूब और अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, हमारा जो ऐप है वहाँ पे भी। तो इसी के साथ ही मैं ये कंक्लूड करता हूँ, हमारा बैच शुरू होने वाला है 6th से आफ्टर पूजा,
एंड बिफोर दैट हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने कुछ डेमो क्लासेस आपको देखने के लिए रख दी हैं ताकि आप इनको अच्छे से देख पाओ, समझ पाओ कि किस तरह से हमारी पढ़ाई कराई जाती है, किस तरह से हमारे फैकल्टीज़ हैं। देन यू कैन टेक अ डिसीजन ओके वेदर यू वांट टू गो फॉर द कोचिंग और नॉट। एक और चीज़ मैं बता दूँ, हमारे रिजल्ट हमेशा, अगर हमारे यहाँ से 10 बच्चे बैठते हैं तो एटलीस्ट 7 to 8 बच्चे रिटर्न क्वालिफाई करते ही हैं। तो इतना हमारा सक्सेस रेशियो है नॉर्थ ईस्ट रीजन में। और हमारे यहाँ से अरुणाचल, असम, मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम, ये सारे स्टेट से बच्चे आते हैं, मेघालय, सो दैट उनको अपना अच्छा रिजल्ट मिले एंड देन यू नो दे कैन प्रिपेयर फॉर द एसएसबी एंड गेट द फाइनल जॉब। सो इसी को ध्यान में रखते हुए मैं यहाँ पे कंक्लूड करना चाहूँगा। अगर आपको कोई भी सवाल जवाब है तो यू डू feel free to write us, and once we start the batch you'll get all the necessary information on the Instagram channel as well as the YouTube. So till then, go through our demo lectures, our mock lectures, and start preparing for the upcoming exam, because you all know the exam for 2023 is on 14th April. Remember this date, 14th April is the exam 2023, and very limited time is left. So once you crack this exam, your job is secured. So please be serious about all these things and behave accordingly. Till then, thank you and have a nice day.